Hallelujah. King of glory. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus of Nazareth. Bless your holy name. Bless your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Bless you, Jesus. Praise your holy name. Lord, we worship you, we glorify you. Jesus of Nazareth. Hallelujah. Jesus of Nazareth, Son of the Most High God. We bless you, praise you. We congregate to praise you, Father, from all over. Hallelujah. We congregate to glorify you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus of Nazareth. We bless your holy name. Hallelujah. Bless your holy name. Jesus, we bless you, praise you. हालेलुया. सबको जय मसीह की. हालेलुया. सभी आ जाइए. हालेलुया. यीशु मसीह की आराधना करें. हालेलुया. 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 गलियों की धूल था मैं, कुचला सा फूल था मैं, जख्मी लाचार पापी, तुझको कबूल था मैं। आकाश पर सजाया टूटा हुआ सितारा। मेरे संग गाइए। आराधना हो तेरी, तू जान भी प्यारा। आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। मेरे संग गाएं। हिरनी हो जाए प्यासी है जान मेरी, हिरनी हो जाए से प्यासी, प्यासी है जान मेरी। तू ही मेरा है हमदम, तुझसे है शान मेरी। संसार के भंवर में मेरी जान का तू किनारा। आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा। प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद 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 करते हैं। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू हमें बचाने के लिए पाप की इस दलदल में मानव बन के उतर आया। तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। तेरे कांटों के ताज के लिए धन्यवाद, कोड़ों की मार के लिए धन्यवाद, तेरी कीलों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु तू मेरे लिए कुचला गया, हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए घायल किया गया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड वी ब्लेस यू,
We glorify you this evening. Lord, we say we love you with all of our being, with every fiber in a substance. Lord, we love you. हम तुझसे प्रीति करते हैं. हम अपने जीवन तेरे चरणों में रखते हैं यीशु मसीह. हालेलुया. तेरे चरणों में. हालेलुया, हालेलुया. तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. तेरी महिमा, महिमा, महिमा यीशु मसीह, तेरी महिमा. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तेरी स्तुति, 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 स्तुति हो. Hallelujah. We bless you, Jesus of Nazareth. Bless your holy name, bless your holy name, bless your holy name, Jesus. We bless your holy name, bless your holy name. Hallelujah. हम तेरी महिमा करते हैं. Lord, we pray that your presence will fall upon us like a mighty river. Father, we pray for the fire of your presence to energize us in a very fresh manner. Father, we pray for the blood of the Lamb to surround us like a canopy, the precious blood of the Son of the Most High God, the ever-living blood that shall never lose its power. May that blood be unleashed over everyone. Father, people who have connected from different parts of the world, I plead your blood being your servant. I plead the blood over everyone that is logged on. Father, I pray that the precious blood of Yahushua HaMashiach, your Son, the King of glory, our Lord, redeeming King, may his blood cover every person, their families, Father, the pastors, their churches, their congregations. Father, I plead the blood of the Lamb. I speak the blood of the Lamb. I invoke the blood of the Lamb. I unleash the power that lies in the blood of the Lamb. There is miracle working power in the blood of Jesus. I release that miracle working power. Father, there is divine frequency in the blood. Father, thank you that there is glory in the blood, that there is divine light in the blood. It is medical science only that just discovered that there is congealed light in the blood. But Father, you revealed unto us that there is divine aura in the precious blood of Jesus. So Father, I release that divine aura over everyone. Father, this vicious virus will not touch your people. 5G radiation will not kill your people. Their genomes, their DNA will never receive the poison. I unleash the divine frequency around your people. तेरे लहू की कुदरत को हम खोलते हैं, तेरे लहू के अभिषेक को हम खोलते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम को जलाल देते हैं. धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं. Lord Jesus, as we turn to you, as we learn on repentance, what true repentance is all about, to you 100%. May we turn away from our wickedness and may we turn to you, Lord Jesus. Hallelujah. आज की शाम प्रभु अपने वचन को खोलें और हमारे ऊपर कृपा करें. हालेलुया. प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं यीशु नासरी. हालेलुया. तेरी महिमा हो. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. सबको जय मसीह की. मैं परमेश्वर के वचन में आपको लेके चलता हूँ. परमेश्वर प्रभु ने एक वचन मेरे हृदय में डाला है आज की संध्या, जिसके ऊपर हम मनन करेंगे. मैं चाहता हूँ अपनी बाइबल खोलिए. टर्न टू सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास की पुस्तक निकालिए और उसका 7 अध्याय निकालिए. दूसरा इतिहास 7 अध्याय. आज मैंने पंजाबी की बाइबल अरेंज की है और इंग्लिश बीच बीच में बोलता रहूँगा ताकि जो इंग्लिश हिंदी पंजाबी नहीं जानते उनको समझ आए. तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ. सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 13 वचन से. सुनिएगा ध्यान से. सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 7, बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 7. यहाँ लिखा है, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि बारिश ना पड़े, अथवा टिड्डियों को हुक्म दूं कि वे देश को चट कर जाएं, या अपनी प्रजा पे मरी भेजूं. कितनी बातें लिखी हैं यहाँ पे लिखा है, इफ आई शट द हेवन एंड देयर इज नो रेन. देयर वाज नो रेन इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन गॉड सेड, इफ आई विल सेंड grasshoppers
आपको मालूम कितने देशों के अंदर इन्होंने फसलें बर्बाद कर दी, दुनिया के कई कंट्रीज में। और फिर प्रभु कहता है वो पूरी फसल को खा जाएं। और फिर प्रभु क्या कहता है, या मैं प्लेग भेजूं। दिस इज द प्लेग दैट इज स्टॉकिंग इन द अर्थ, एंड दिस प्लेग हैज ऑलरेडी किल्ड मैनी पीपल। Politician, the scientist, the epidemiologist, they don't seem having any answer. But we know who has the answer. The one who has the answer, he is the answer himself. His name is Jesus. जिसके पास इसका जवाब है वो स्वयं जवाब है, और उसका नाम है यीशु मसीह। तो मैं चाहता हूं इसका 14 वचन पढ़िएगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन। क्या कहते हैं प्रभु, अगर जो मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है अधीन होकर, दीन होकर, हम्बल होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी हो तो, और अपने बुरे राह से पलटे, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। देखिए प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है जो मेरी प्रजा और जो मेरे नाम से कहलाती है। सबसे पहले मैं आपको प्रभु के नाम को स्पष्ट करना चाहता हूं। लेट्स टर्न टू, जल्दी से एक वचन पढ़ें, निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 3 अध्याय जल्दी से निकाल लीजिए। एक्सोडस की पुस्तक निकालिए, निर्गमन, जिसे हम पंजाबी में कूच की किताब कहते हैं। कूच की किताब, उसका 3 अध्याय और उसके 13 वचन से मैं पढ़ता हूं। देखिए यहां पे मूसा परमेश्वर से बातें करता है। मोसेस द सर्वेंट ऑफ गॉड इज टॉकिंग टू गॉड। इट्स अ फेनोमेनल साइट टू वॉच। There is a bush that is on fire. Bush is on fire. It's burning but yet not burning. And out of that glorious fire, there is the voice of the creator of the universe talking to a mortal man. आग के माध्यम में से, झाड़ी को आग लगी है, उसमें से सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर एक मनुष्य से बातें करता है। यहां लिखा है, फिर मूसा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਭਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ है। मोजेस कहता है कि यदि मैं इसराइलियों के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है, तो वो पूछेंगे उसका नाम क्या है। तो लिखा है, तब मैं उन्हें क्या कहूं। फिर आगे पढ़िए 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हालेलुया, इट्स सो ग्लोरियस। आग में से क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, सृष्टि का रचिता बात करता है। परमेश्वर आपकी अटेंशन खींचने के लिए कुछ भी करेगा ताकि आप अपना ध्यान उसकी ओर दें। शायद ये वबा, प्लेग पृथ्वी पे भेजनी रिजॉर्ट था, कोई और ऑप्शन नहीं बची थी परमेश्वर के पास कि लूक वर्म लॉडीसियन कलीसिया का ध्यान अपनी ओर खींचे और इस पाप में डूबे संसार का ध्यान अपनी ओर खींचे। तो वचन में लिखा है, प्रभु क्या कहता है 14 वचन में, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम। बहुत से जूइश रब्बी कहते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, आग में से, आग की झाड़ी में से आग के हिब्रू लेटर निकल के बाहर आए। आग के हिब्रू लेटर। आपको मालूम, हिब्रू भाषा मनुष्य ने नहीं बनाई, यहोवा ने हिब्रू लैंग्वेज को क्रिएट किया है। और हिब्रू लैंग्वेज परमेश्वर यहोवा की क्रिएशन का एजेंट है। जीसस ने क्रिएशन को क्रिएट किया हिब्रू के साथ। और लिखा है, तो परमेश्वर ने क्या कहा ओरिजिनल हिब्रू में। परमेश्वर ने जब मूसा ने उसका नाम पूछा, तो आपको मालूम परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से। हिब्रू भाषा में लिखा है, मैं हिब्रू भाषा में बता देता हूं कितने वर्ड लिखे हैं। वहां लिखा है अलफ हे योड हे वाव हे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। तो 3 सिलेबल्स है। सुनिए क्या 3 सिलेबल है। हाया, अशेर, हाया। परमेश्वर ने बोला, हाया, अशेर, हाया। बोलिए मेरे पीछे, हाया, अशेर, हाया। ये यहोवा का नाम है। हाया, अशेर, हाया। फिर से बोलिए पवित्र नाम, बोलिए हाया, अशेर, हाया। हाया, अशेर, हाया। हाया, अशेर, हाया। आपको मालूम यहोवा का नाम क्या है? यहोवा का नाम है योड हे वाव हे। मेरे साथ बोले,
Yod He Vav He Adonai. Yod He Vav He Adonai. बोलिए, गाइए. Yod He Vav He Adonai. Haya Asher Haya. Haya Asher Haya. Haya Asher Haya. आपके ऊपर पवित्र आत्मा की नई ताजगी उतरेगी. गाइए मेरे साथ. Haya Asher Haya. Haya Asher Haya. Yod He Vav He Adonai. Yod He Vav He Adonai. मैं एक वचन आपको और देना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ आप पढ़िए जल्दी से. एक वचन और पढ़िए निर्गमन की ही पुस्तक में से. यही बुक जो आपने खोल रखी है, निर्गमन का आप निकालिए 15 अध्याय, चैप्टर नंबर 15. निर्गमन की पुस्तक चैप्टर नंबर 15. और मैं चाहता हूँ इसका आप पढ़ें वर्ड्स नंबर 1 से. एक्सोडस 15 वर्ड्स नंबर 1 टू वर्ड्स नंबर 3. निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 1 के 3 से. देखिए, मैं यहाँ लिखा है, पंजाबी में लिखा है. तद मूसा अते इसराइलियां ने यहोवा लई एक गीत गांदे होए आख्या. हालेलुया. जब लाल समुंदर फट गया, पानी ऐसे दीवार बन के खड़ा हुआ. आपको मालूम, फिजिक्स के लॉ को तोड़ दिया परमेश्वर ने. फिजिक्स का लॉ फ्रिक्शन बोलती है कि पानी कभी ऐसे खड़ा नहीं हो सकता. पानी के मॉलिक्यूल्स कैन नॉट स्टैंड लाइक अ वॉल, बट गॉड ऑफ इजराइल कैन डू एनीथिंग. हालेलुया. पानी को ऐसे खड़ा किया और इस्राएली निकल गए. और प्रभु ने देखिए क्या किया यहाँ पे. तो मूसा का ये गीत है. आपको मालूम, हेवन में 2 गीत गाए जाते हैं स्वर्ग में. एक मेमने का गीत है, एक मूसा का गीत है. कौन से गीत गाए जाते हैं? सॉन्ग ऑफ मोजेस एंड सॉन्ग ऑफ द लैम. तो मैं भी बताता हूं, गीत गा रहे थे वो लोग समुद्र के दूसरे तट पे खड़े होके. लाल समुद्र के परले किनारे इस्राएली पहुंच के गीत गाते हैं. मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि वह अत्यंत महान हुआ है. कौन? यहोवा. किसके लिए गाऊंगा? लोगों के लिए नहीं गाते हम. लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं गाते. किसके लिए गाते हैं? यहोवा के लिए. हमारे हर एक गीत यहोवा के लिए एक आहुति होते हैं. और लिखा है, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि वह महान हुआ. और आगे क्या कहते हैं? उसने घोड़ों को और उसके सवारों को समुद्र में डाल दिया. आप वचन को अगर बारीकी से पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगी कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है. मैंने जब आपको 7 कलीसियाओं के विषय में बता रहा था, तो 7 कलीसियाओं में जब बता रहा था, जब मोहर खुलती है पहली, तो मैंने आपको बताया, 4th जब सील खुलती है तो मैंने आपको बताया कि घोड़े पे बैठा एक व्यक्ति आता है, सफेद घोड़े पे, और उसके हाथ में एक बो है. तीर नहीं है. मैंने आपको बताया था तीर भी कहाँ है, ये भी बताया था. बो है और उसको एक रीत दी गई ऐसे जीतने वाले की. वो जीतता जा रहा है. और बहुत से लोग सोचते हैं वो मसीह है. वो मसीह नहीं है, लेकिन मसीह के जैसा दिखने वाला इम्पोस्टर है, झूठा मसीह है. हालेलुया. एंटी क्राइस्ट है. और वो कौन है? मैंने उसकी पहचान बताई थी. वो रिशेफ एक देवता है, कनानियों का वो देवता है, और अमालेकियों का देवता है. और जो रिशेफ है वो अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर है. बाइबल में उन देवताओं के नाम दिए, जहां पे लिखा ना मरी, बवा, असल में वो देवते हैं अन्य जाति के, जिन्हें परमेश्वर अपनी कौम को सजा देने के लिए आज्ञा देता है. वो रिलीज होते हैं और वो सजाएं देते हैं. वचन को हिब्रू टेक्स्ट में पढ़ेंगे फिर आपको सारी सच्चाई पता लगेगी. ये जो बवा भी चल रही है, इसके विषय में भी साम 91 में लिखा है. ये भी एक देवता है अन्य जाति का, जो सजा दे रहा है पृथ्वी पे. किन्हें? जिन्होंने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, मजाक किया परमेश्वर का, जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को हृदय में नहीं रखा, जो प्रभु के मार्गों पे नहीं चले. आपको मालूम यहाँ पे क्या स्पिरिचुअल वॉरफेयर मोसेस ने देखा
कि ये जो फिराउन था, आपको मालूम फिराउन, ये जो अमीनोटॉप द सेकंड था ये, और ये वही फिराउन है जिसने ऋषेफ को, जो कि कनानियों का देवता था, अंडरवर्ल्ड का गॉड था, उसे इस व्यक्ति ने मिस्र में देवता करके स्थापित किया। और इस देवता की खासियत क्या है, ये घोड़े पे जाता है और ये वॉर का देवता है, प्लेग लाता है ये लोगों के ऊपर, घोड़े पे जाता है। तो इसने, फिराउन ने उसकी प्रतिष्ठा की, देवता की प्रतिमा लगाई थी अपने देश में, और वो ये मानता था कि मेरे रथों को चलाने वाला ये देवता है। जैसे कई देशों में, कई संस्कृतियों में रथ के आगे सारथी जो होते हैं वो देवता लोग होते हैं। तो ऋषभ था, ये इसराइलियों को पकड़ने के लिए निकला। इसे पता था कि मेरे रथ मनुष्य नहीं चला रहे, ऋषभ और उसकी सेना चला रही, रफाइम चला रहे हैं, तो मैं इसराइलियों को पकड़ लूंगा, उनको खींच के वापस ले आऊंगा। इसे नहीं मालूम था जंग कौन लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है जंग? यहोवा, हालेलुया। तो लिखा है, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा क्योंकि वो अत्यंत महान हुआ, उसने घोड़ों को और उसके सवार को, ऋषभ की बात कर रहा है मोसेस। मोसेस ने देखा कि आपको मालूम 600 चुने रथ लेके गया वो। उस रथ को चलाने वाले जो लोग होते थे वो 7-7 घोड़े आगे लगे होते थे, उसकी रकाब को मुंह में रख के और तीर मारते थे, और तीर निशाने पे लगता था और फाड़ देता था लोगों को। और ऋषभ ये बदरुएं थी जो युद्ध कर रही थी, लेकिन इनके संग युद्ध करने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। अगर आपका जीवन प्रभु के लिए सही होगा तब यहोवा लड़ेगा। अगर आप पाप में, अधर्म में जीवन गुजार रहे हैं, यहोवा आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। पंजाब में बड़े गीत गाते, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, बहुत गीत आते हैं, चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप तब खड़े रहना जब जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे है और पवित्रताई और धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, तब यहोवा आपकी लड़ाइयां लड़ेगा। हालेलुया। तो लिखता है मूसा प्रभु का बंदा आत्मा में वो संग्राम देख रहा है आत्मिक दुनिया का, और क्या कहता है? यहोवा मेरा बल और मेरा भजन है, वह मेरा छुटकारा हुआ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी शोभा करूंगा। वह मेरे पिता का परमेश्वर है, मैं उसकी उसकी महिमा करूंगा, वड्याई करूंगा, पंजाबी में लिखा है। यहोवा योद्धा पुरुष है। Moses could see the spiritual warfare right in the middle of the Red Sea. There was an intense war that was waged against those demonic entities, those demons, Resheph and all his Raphaims, and people from the underworld came to fight against the people of Israel. अंधकार की शक्तियां आई, यहोवा ने उन सबको, उनकी कब्र बना दी यहोवा परमेश्वर। मालूम, अभी एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो क्रिश्चियन है, एक बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो CIA के हेड थे किसी टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने वहां पे रिसर्च करके उनके व्हील निकाल लिए बीच समुंदर में, व्हील्स मिल गए उनको, हथियार मिले नीचे पानी में दबे हुए। फिराउन के रथ और घोड़ों को किसने, जिसका नाम क्या मैंने आपको बताया, हाइया, अशर हाइया जिसका नाम है, मैं जो हूं सो हूं। बोले मेरे संग, हाइया आशेर हाइया। हालेलुया। बोले हाइया आशेर हाइया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्क्रिप्चर को पढ़ के ध्यान से सुनिएगा। यही ये स्क्रिप्चर क्या कह रहा है। हालेलुया। ये स्क्रिप्चर कह रहा है, हालेलुया। आप सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो मैसेज लिखिए मुझे प्लीज, राइट अ मैसेज। हालेलुया। Can you all see me? Can you all hear? Hallelujah. Thank you, Jesus. सुन रहे हैं आप सभी? बताइए मुझे, टेल मी। हालेलुया। हालेलुया। प्लीज मैसेज करें। Can you see me live or it's disconnected? Hello. Hallelujah. Are you watching me live? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please come back, everybody. हालेलुया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है जो अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती हैं कि लोगों तक पहुंचे। प्लीज कम बैक एवरीबॉडी, प्लीज कम बैक क्विक। हालेलुया, जल्दी से वापस लौटिएगा। हालेलुया। वी हैड लॉट मेनी पीपल ऑनलाइन, प्लीज कम बैक। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तब तक हम प्रभु का नाम पुकारें। हालेलुया। योधे वावे एरोनाए, 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 योधे वावे एरोनाए। एरोनाए एलोहीम एल शदाई, एरोनाए एलोहीम एल शदाई, यहुआ राफा, Yahuwah Shalom, Yahuwah Sabayo. We bless you, Yahuwah Rapha, Yahuwah Shalom, Yahuwah Sabayo. We glorify you, Lord. Hallelujah. We bless you. Thank you, Father. I plead the blood over the broadcast of this particular message, Father. I plead the blood. Hallelujah. The forces of darkness will not touch this message, Father. This will reach the hearts of your people. This must reach the hearts of your people in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। देवर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ पीपल ऑनलाइन। चलिए हम निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय के ऊपर मनन कर रहे थे। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 से 3 वचन को मैं कुछ वर्ड हिब्रू में आपको बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, द सॉन्ग ऑफ देन सैंग मोजेस एंड द चिल्ड्रन ऑफ याशरेल। तब मूसा ने और इसराइलियों ने गाया, मोजेस एंड द चिल्ड्रन ऑफ याशरेल। और उसके बाद हिब्रू में वर्ड है अलफ्ताब। आपको मालूम अलफ्ताब का मतलब है जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में इसके बाद हिब्रू वर्ड आता है अलफ्ताब। इसके बाद दिस, इसमें ऐसे लिखा, देन सैंग मोशे एंड चिल्ड्रन ऑफ याशरेल अलफ्ताब दिस सॉन्ग अनटू यहोवा। यहोवा के लिए गीत गाया। एंड स्पोक सेइंग, और ये बोलते हुए कहा, आई विल सिंग अनटू यहोवा फॉर ही हैज ट्रायम्फ्ड ग्लोरियसली। मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि उसने जबरदस्त ढंग से विजय पाई है। और आगे लिखा है, द हॉर्स एंड द राइडर, एक का नाम लिखा है सिंगुलर, ऋषभ जो देवता है बैठा हुआ। और ऋषभ देवता जो अंडरवर्ल्ड का, उसकी सारी ताकत जो है, प्रभु कहता है, मूसा कहता है, यहोवा ने समुद्र में दफन कर दी है। या इज माई स्ट्रेंथ एंड सॉन्ग, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है, मेरा बल और मेरा गीत है। ही इज बिकम माई यहोशुआ। ये यीशु मसीह का नाम है यहां पे ओरिजिनल हिब्रू में। ही इज बिकम माई यहोशुआ। आपको मालूम साल्वेशन का नाम क्या है? मुक्ति का। मुक्ति को हिब्रू में बोलते हैं यहोशुआ। He is become my Yehoshua. He is my Elohim. I will prepare him a habitation. मैं यहोवा के लिए एक घर तैयार करूंगा। हालेलुया। क्या तैयार करूंगा? एक घर, एक भवन तैयार करूंगा। My father's Elohai, I will exalt him. Yahuwah is man of war. Yahuwah is his name. That's the original Hebrew. मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। किधर? इधर, अपने अंदर। हालेलुया। और वचन में लिखा है, यहोवा इज मैन ऑफ वॉर। यहोवा रूह है, अनंत परमेश्वर है, इनफाइनाइट गॉड है। लेकिन मोजेस यहां लिख रहा है, ही इज मैन ऑफ वॉर। मोजेस ने यहोवा को ऋषभ के साथ युद्ध करके उसे समुद्र के बीच में मार के दफन करते देखा। ऐसा करेंगे यहोवा अगर आप यहोवा के संग वफादार होंगे। हालेलुया। यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। चलिए मैं आपको एक वचन और पढ़ाता हूं। मैं आपको वहां पे ले जाना चाहता हूं जो पहला वचन हमने पढ़ा, मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है। लेकिन अभी हम कुछ और अध्ययन करेंगे। जल्दी से निकालिए 2 क्रॉनिकल्स, दूसरे इतिहास की पुस्तक जल्दी से निकालिए। टर्न टू 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, और उसका 34 वचन आप निकालिए। 2 क्रॉनिकल्स 34 चैप्टर, दूसरे इतिहास का 34 अध्याय, उसका 27 वचन। दूसरा इतिहास 34 का 27।
के लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, इसलिए यहां पे लिखा है इसलिए कि तेरा मन मुलायम हो गया। पंजाबी में लिखा मुलायम होया, तू दीन हुआ। इसलिए कि तेरा मन मुलायम हुआ और तू परमेश्वर के आगे दीन हुआ, जब जब तू उस ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ बनाया और अपने लीड़े पाड़ के मेरे अगे रोया, तद मैं तेरी सुन ली। प्रभु कहता है, ये पढ़िए वचन आप 34 का 27 वचन। प्रभु कहता है इसलिए कि तेरा मन दीन हुआ, तू प्रभु के आगे अब तूने अपने आप को हलीम किया। इस जगह के, जो जगह मैंने बोला आपको, वो मूसा कहता है मैं तेरे लिए एक जगह तैयार करूंगा यहोवा, जहां तू वास करे। तो यहां प्रभु क्या कहता है, उस जगह के विरोध में तूने क्या किया, पाप किया, और इस स्थान के विरुद्ध में, इसके वासियों के विरुद्ध में बातें सुनी। तूने मेरे आगे अपने आप को दीन किया और अपने वस्त्र फाड़े। ये वस्त्र नहीं भाई और बहनों, अंदरूनी वस्त्र फाड़े। तब तू मेरे आगे रोया, तब मैंने तेरी सुन ली। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? प्रभु आज लोग तौबा कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं, लेकिन स्किन डीप भी नहीं है उनकी रिपेंटेंस। फॉर्मल रिपेंटेंस नहीं चाहिए यहोवा परमेश्वर को, हृदय की डीप रिपेंटेंस चाहिए। यहां पे लिखा है रेंड योर क्लोज, ये इसका मतलब है रिकॉग्नाइज योर ट्रांसग्रेशन। आपकी इनिक्विटी को, आपकी बदकारी को, आपके अधर्म को पहचानिए कि आपने यहोवा की वाचा को तोड़ा है, पांव के नीचे रौंद दिया है, और फिर उसके आगे विलाप करते रोते हुए आओ। तब यहोवा तुम्हें क्या करेगा, क्षमा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 27 वचन बाद में पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा है स्वामी तेरा कर्जा माफ कर देगा। हालेलुया। क्या करेगा स्वामी? तेरा सारा डेट क्षमा कर देगा। आपको मालूम, एक औरत आई यीशु मसीह के पास, उसे ले आए, जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी, और यीशु मसीह कहते हैं जिसमें पाप ना वो पहला पत्थर मारे। आपने, यीशु मसीह उस औरत को क्षमा करते हैं और उसे क्या कहते हैं? जीसस सेड टू द वुमन, गो एंड सिन नो मोर। जीसस सेड ऑल योर डेट्स आई पेड, आई क्लियर्ड योर अकाउंट ऑलरेडी, यू ओ नथिंग, योर अकाउंट इज सेटल्ड। Now, since your account is settled, there is no debit and there is no credit. Go and sin no more. Don't continue to live the same way. यीशु मसीह एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति को, आपको मालूम, उस व्यक्ति को स्वर्गदूत ने चंगा नहीं किया। 38 साल से वो पड़ा हुआ था। कहाँ? वहां पे स्वर्गदूत आता था, कोई चंगा होता था, लेकिन इस बंदे को चंगा नहीं किया। 38 सालों में ये व्यक्ति कैसा था? इसकी जो बीमारी है, ग्रीक में लिखा है जैसे ऐसे, उसके मतलब ब्रेन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, लेकिन उसकी टांगें, उसकी बाजू, कोई शरीर का अंग काम नहीं कर रहा, और वो उन 5 सारों में से एक में पड़ा रहता था और जिसके अपने आप को आगे करता था। 38 साल से था वहां पे। उसको इतना अनुभव था, उसे पता लग गया था जब दक्षिण से हवा चलती है, जब फलानी ऋतु आती है, तब एंजल आता है, फलाने दिन आता है एंजल, इतने समय आता है। उसको पूरा अनुभव है। वो बेचारा अपने आप को आगे करता है, धीरे 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 खींच के पहले ले जाता आगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने आप को पानी में गिरा पाए, ऐसे करके कोई और अपने पेशेंट को गिरा देता था। पर्पसली एंजल ने उसे ठीक नहीं किया, बिकॉज ऑफ द सिन इन दैट मैन। नाउ यू विल वंडर व्हाट काइंड सिन दैट मैन कमिट। यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और यीशु मसीह उसे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? बड़ा स्ट्रेंज सवाल था, क्योंकि चंगा होना उस व्यक्ति के वश की बात थी, इसीलिए यीशु मसीह से पूछा। मसीह कहते हैं गो एंड सिन नो मोर। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बुरी चीज तेरे ऊपर आन पड़े। हालेलुया। तो पढ़िए आप कि परमेश्वर ने डेट सारा खत्म कर दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अंदर से वीप करो ताकि तुम्हारा डेट सारा खत्म हो जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 8 से 12 वचन आप घर में पढ़ लीजिएगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ मुड़ आओ। और यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को, अगर तुम इन बच्चों की तरह नहीं बने, समझते हैं आप, बच्चों की तरह यीशु मसीह की बात करते हैं। जब आप छोटे से बच्चे थे, कितना मजेदार जीवन था, आपको कोई परेशानी नहीं थी,
कोई बिल की चिंता नहीं थी, कहाँ से आएगा, कैसे खर्चा होगा। यू केयर्ड फॉर नथिंग। इनोसेंस, निर्दोषता। यीशु मसीह आपको मालूम क्या कहते हैं जब चेले बच्चों को रोकते हैं? यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। आपको मालूम कितनी खास बात यीशु मसीह ने कही वहां पे? यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, लेट देम कम अनटू मी। अगर किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास आना है तो उसे तौबा करके नया जन्म पाना पड़ेगा, तब वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल होगा नया जन्म पाके। लेकिन बच्चे के लिए ऐसा नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह कहते हैं बच्चों को मेरे पास डायरेक्टली आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। जो इनोसेंस है, तौबा का आज आपको मैं मतलब समझाने जा रहा हूं। पश्चाताप। प्रभु कहता है मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है। किसके नाम से? आहिया आशर आहिया, हाइया आशर हाइया, हाइया आशर हाइया, योड हे वाव हे, यहूशा हा मशियाक, जो उसके नाम से कहलाती है। हालेलुया। वो क्या करे? अपने आप को दीन करे। इनोसेंस, इनोसेंस, निर्दोषता उसके अंदर। प्रभु कहता वापस लौटो, बी लाइक चाइल्ड। चाइल्डिश नहीं कहता प्रभु कि चाइल्डिश बन जाओ, बट बी लाइक चाइल्ड। हालेलुया। दोनों में बड़ा फर्क है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक वचन पढ़ें, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय। 3 बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, अभी भी छोटे ही हैं, तो कई बातें अपने बच्चों को समझाने के लिए हमें डराना पड़ता था। ये ऐसे है, मुझे अपने बच्चों को बताना पड़ता था हर कोई अजनबी से चॉकलेट नहीं लेना, कैंडी नहीं लेनी। मेरे बच्चों को नहीं मालूम था कुछ भी, मुझे उन्हें सिखाना पड़ा, क्योंकि बच्चे सब कुछ, सबसे सब कुछ ले लेंगे, वो शक नहीं करेंगे किसी पे, वहम नहीं करेंगे। प्रभु कहते हैं इस तरह का बच्चों जैसा स्वभाव तुम्हारा हो। हालेलुया। और यीशु मसीह बताते हैं स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ी पदवी, सबसे बड़ा है। उसने बच्चे को खड़ा किया और उसने कहा स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में अगुआ, लीडर वो नहीं है जो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा है, जिसके नाम के आगे बहुत सारे टाइटल लगे हुए हैं, वो नहीं है। स्वर्ग के राज्य में अगुआ वो है जिसका बच्चे जैसा हृदय है और बल है, और जिसके पास एक तसला है, और वो है परमेश्वर के राज्य। पढ़े कुछ वचन याकूब की पत्री में से। मैं याकूब के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया है, कई साल अध्ययन किया याकूब के ऊपर। याकूब यीशु मसीह का आधा भाई था, अर्थात मरियम और यूसुफ की संतान। ये वो था जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जब यीशु मसीह 500 के ऊपर उनमें से एक था, इसने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। और इतिहास बताता है ये यरूशलेम की कलीसिया का पासवान बना, और कलीसिया में एक पिलर था, बहुत ही जबरदस्त शख्सियत, बहुत जबरदस्त था, एक जबरदस्त इतिहासकार। मिसियानिक जूने की पुस्तक वो, कि जिस कमरे में जेम्स या प्रभु का सेवक, उस कमरे के अंदर जब वो उसकी बहुत लंबी उम्र भोग के उसको शहीद किया गया, मार्टरडम मिली उसको, लेकिन जब उसके कमरे के अंदर जाके लोगों ने एग्जामिन किया, मैंने उस पुस्तक में पढ़ा कि पत्थर का फर्श था उस कमरे के अंदर, लेकिन उसके वहाँ पे एक कारपेट को हटा के जब उन्होंने देखा, उसके नीचे ऐसे ऐसे जैसे डिप्रेशन पड़े हुए थे, वो जगह घिस गई थी। आपको मालूम कितना हम्बल बंदा है, अपनी आपको ये नहीं कहता मैं यीशु मसीह का भाई हूं, ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। की पत्री आप निकालेंगे देगी, और मैं चाहता हूं कि इसका पहला वचन जरा पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं आपको वचन देता हूं। लिखतम याकूब जेड़ा परमेश्वर अते प्रभु यीशु मसीह का दास है। कौन है? याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह, आपको ग्रीक में, जिसका मतलब होता है बंधुए गुलाम,
जिन्हें खरीदा गया गुलामी करने के लिए। मैं वो हूँ यीशु मसीह का। हालेलुया। और हम पढ़ें इसका, अब 4 अध्याय से मैं आपको कुछ पढ़वाना चाहता हूँ। 4 अध्याय और उसके हम पढ़ेंगे 5 वचन से। यहाँ लिखा है, ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਉਸ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਣਖ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ है पर हलीमा दे कृपा करता है। परमेश्वर का एक स्वभाव है, सुनिए गौर से, परमेश्वर का एक स्वभाव ये है, वो घमंडी व्यक्ति को पसंद नहीं करता और दीन व्यक्ति की ढूंढता है यहोवा। हालेलुया। वचन में लिखा है, यशायाह कहता है कि यहोवा कहता है डायरेक्ट उससे, मैं यहोवा सर्वोच्च पहाड़ के ऊपर विराजमान हूं, पर मैं उसके संग भी रहता हूं जो दीन और खेदित मन का है और मेरा कलाम सुन के थरथराता है। दीनों के संग यहोवा का डेरा है। हालेलुया। आपको मालूम, यहां पे लिखा प्रभु के हाथों के नीचे अपने आप को क्या करो, दीन करो। मैं आपको बताना चाहता हूं हम्बल के लिए कौन सा वर्ड यहां पे यूज किया गया, आपको लेक्सिकन में मिल जाएगा। ये वर्ड हिब्रू की लेक्सिकन में ये वर्ड है H6031 और ये वर्ड है आना। हिब्रू वर्ड है आना। आना का मतलब हम्बल, जैसे अन्ना बोलते हैं ना साउथ में भाई को, ये वही वर्ड है लगभग, लेकिन ये आना है। जब ये वर्ड खाना बनता है, जिसे हम हन्ना बोलते हैं, हन्ना का मतलब यही है, हम्बल वन, अनुग्रह से भरे। लड़कियों के नाम होते हैं ना हन्ना, का मतलब दीन और अनुग्रह से भरी हुई। ये आना रूट है इस वर्ड की। हालेलुया। और आपको मालूम, आप हैरान होंगे कि इसकी प्रिमिटिव रूट क्या है, ओरिजिनल वर्ड का मतलब क्या है। इस वर्ड का ओरिजिनल मतलब है डिप्रेस, टू मेक योर सेल्फ डिप्रेस, टू अबेज वन सेल्फ, चेस्टन वन सेल्फ, टू डील हार्शली विद वन सेल्फ, टू सबमिट वन सेल्फ। इसका असली मतलब है अपने आप को तोड़ना, अपने आप को खाली कर देना, अपने सारे गुरूर को, घमंड को, अपनी सारी हैसियत को कूड़ा करकट समझना और अपने आप को सजा देना। ये ओरिजिनल मीनिंग है इस शब्द का। अपने जिस्म को, अपने शरीर को सजा देना। आपको मालूम, इस्राएली लोग जो बियाबान में थे तो परमेश्वर के आगे वो कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए। उसके ऊपर टीचिंग है, कितनी बार कुड़कुड़ाए, कितनी बार बुड़बुड़ाए, कौन कौन सी सजा आई, क्यों यहोवा ने उन्हें मार दिया। किसी समय आपको वो शिक्षा देंगे वचन में से। लेकिन अगर आप निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय का 13 वचन और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय का 32 वचन पढ़ें तो वहां पे एक वाक्य, जब वो कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए और वो मांस मांग रहे थे, मीट चाहिए हमें। अभी हमारे भाई हैं दिल्ली में, ललित भाई, वो भी बहुत मीट के तलबगार हैं, ढूंढ रहे हैं कहीं से उनको, ब्रदर ललित मेहरा को कहीं से मीट मिल जाए। तो इसराइली मीट के लिए तड़फ रहे थे कि मीट मिले और कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। यहोवा के इतने बड़े बड़े कामों को भूल गए और कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। जब कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, यू नो, गॉड गेट्स मैड व्हेन हिज पीपल ग्रम्बल, व्हेन हिज फ्लॉक टर्न्स अनग्रेटफुल। दैट इज समथिंग दैट गॉड कैन नॉट टॉलरेट। You know what makes God mad and what unleashes his anger is ungrateful attitude. That is why we have to be appreciative. We have to be thankful. Hallelujah. परमेश्वर को हमें धन्यवाद का बलिदान, we have to continually offer unto him the sacrifice of praise and thanksgiving. प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। तो यहां 2 वाक्य में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, तो परमेश्वर ने मांस भेज दिया, मीट भेजा और उन्होंने मीट खाया, दबा के खाया। लेकिन प्रभु गुस्से में था। वचन में लिखा उनके नथनों में था मीट, एंड गॉड सेंट अप, उनको मार दिया प्रभु ने। आपको मालूम क्यों? क्योंकि प्रभु क्रोधित हुआ। कई बार बच के रहना, किसी प्रार्थना का जवाब अगर प्रभु ने आपको दिया है तो वो आपकी मौत भी हो सकती है। क्यों प्रभु उनसे क्रोधित हुआ? क्योंकि शरीर की कामना उनके अंदर जगी। लस्ट ऑफ द फ्लैश अरोज so rampantly among them that Satan filled their hearts to
to bicker against God and to speak ungracious words before God and dishonor him, and they forgot all the great things God did. So that unleashed God's anger, and a demonic entity was released, and a plague broke out, and thousands perished there. मर गए वो लोग, क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। इन सब चीजों के पीछे बदरुएं हैं। वचन पढ़ के देखें गहराई में, हिब्रू में जाएंगे फिर पता लगेगा आपको कि कौन कौन सी शैतानी आत्माएं काम कर रही थी। परमेश्वर ने उनको वहीं मार दिया, और अगर आप जाएंगे वहां कब्रें मिलेंगी उनकी। आपको मालूम उस एरिया को क्या कहा जाता है? किब्रोत हा अताबा। दैट प्लेस इज टुडे कॉल्ड किब्रोत हा अताबा, विच लिटरली मीन्स द ग्रेव ऑफ देयर लस्ट। उनकी शरीर की वासना की कब्रें, यही शब्द इस्तेमाल किया गया है। आपको मालूम कहां? कि हवा ने उस फल खाने को लोचा कि यह फल खाने के लिए बढ़िया है। ये सेम वर्ड, हालेलुया। शारीरिक वासना, शारीरिक कामनाएं, इन्हें हमें मारना है परमेश्वर के आगे। हम्बल का मतलब क्या है? हम्बल का मतलब बड़ा डीप है। शारीरिक आपको मालूम ग्रीक में वर्ड क्या है इसके लिए? क्योंकि ये ग्रीक में लिखा गया है टेक्स्ट जेम्स ने। ग्रीक में वर्ड है टपीनू। ग्रीक वर्ड है टपीनू, G5013 5015 जी ग्रीक में, ये मिल जाएगा लेक्सिकन में। इसका मतलब भी क्या है? टू डिप्रेस, टू ह्यूमिलिएट कंडीशन ऑफ हार्ट। पर्पसली अपने दिल को वैराग्य में लाना, अपने दिल को दुख देना, अपने दिल के अंदर रंज पैदा करना बदकारी के लिए। टू ब्रिंग लो वन सेल्फ, अपने आप को नीचे ले आना। हमारी कोशिश है ना अपने आप को ऊंचा करने की, दिखावा करने की, घमंड की, बड़ी बड़ी बातें बोलने की, अपने आप को बड़े हाई प्रोफाइल में पेश करने की। लेकिन दीनता बिल्कुल इसके उलट है। दीनता का मतलब अपने आप को तोड़ देना, शून्य कर देना, खत्म कर देना परमेश्वर के आगे। हालेलुया। ये है, प्रभु कहता है, अगर मेरी प्रजा को नाम बताया, उसका क्या नाम है? उसका मेरी प्रजा, प्रभु कहता है, जो मेरे नाम से, आपके ऊपर उसका नाम बोला गया है। यहूशा हा मशाक का जो नाम आपको दिया गया, उसके अंदर यहोवा का नाम है। हालेलुया। यहोवा के नाम में यहूशा हा मशाक का नाम है। वो नाम आपके ऊपर इन्वोक किया गया है। प्रभु कहता है मेरी प्रजा अपने आप को दीन करे, आना और से जाए और अपने आप को मेरे चरणों में डाले और बच्चे की मानिंद मेरे सन्मुख आए। हालेलुया। मैं उन्हें शुद्ध करूं। ऐसे ही है जैसे आपके बच्चे हैं, घर में खेल रहा है, उसके अंदर गंद डाल दिया बच्चों ने, तो आप क्या करते हो? बच्चों को सजा देते हो, उन्हें बोलते मत करो। तो आपके नन्हे बच्चे उस घर को सुंदर बनाते हैं। कितना अच्छा लगता है आपको। ऐसे ही परमेश्वर है पश्चाताप। मैं चाहता हूं अभी कुछ और वचन पढ़े हम। 5 अध्याय निकालिए याकूब की पत्री, 5 अध्याय, उसके पहले 4 वचन। याकूब क्या कहता है? कहता है, हे तुमने विपत्ति के दिनों के लिए जो आने वाली हैं तुम्हारे ऊपर, चीखे मार मार के रो, चीख चीख कर रो, धनवानों तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारा धन गल गया, बस्तर को कीड़े खा गए। बहुत सा धन जोड़ा है, बहुत सा सोना, बहुत सी संसारिक चीजें, बहुत से नए फ्लैट्स ले रखे हैं, घर ले रखे हैं, बहुत से प्लॉट ले रखे हैं, बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत सा पैसा पॉलिसीज के अंदर डाला हुआ है, बैंक में बड़ा हैफ्टी बैंक अमाउंट है। सोच रहे हो अरे परवाह कोई नहीं है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु इन अंत के दिनों में कह रहा है चीखे मार मार के रो, क्योंकि तुम्हारा धन गल गया। प्रभु ने पहले कहा था पृथ्वी पे मत जोड़ो, वहां गलता है और कीड़ा खाता है। और तुम्हारे कीमती कीमती वस्त्र वार्डरोब भरी हुई हैं, उनको कीड़े खा गए। तुम्हारा सोना चांदी को जंगाल नहीं लगता कभी, बिल्कुल अश्योर्ड मेटल्स हैं, तभी लोग खरीदते हैं इन्हें। लेकिन प्रभु कहता है उन्हें जंग लग गया है, जंगाल लग गया है। और प्रभु कहता है और उनका जंगाल तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देगा और आग की तरह तुम्हारा मांस खा जाएगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? लिखा है तुमने अंत के दिनों के लिए ये सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है। सब कुछ किसके लिए इकट्ठा किया है? मालूम नहीं कि प्लस आएंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां, ट्रेजेडी आएंगी, अरे भैया खर्चने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा।
अभी देखिए, मुझे नहीं लगता कोई कोई बहन को दिल में आता होगा कि मेकअप किया जाए या ब्यूटी पार्लर जाया जाए, ब्यूटी सैलून जाया जाए, पेडिक्योर मैनिक्योर कराया जाए, फेशियल मेकअप करवाया जाए। किसी को बहुत अपने आप को बढ़िया बनाने के सैलून में जाके या किसी बढ़िया जगह ये पहनने का चाव दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपकी गाड़ियां के ऊपर भी डस्ट पड़ी हुई है। अब मन में ख्याल भी नहीं कि किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं या किसी बाहर जगह पार्क में घूमने के लिए जाएं या किसी जगह जाके पार्टी में पैसा खर्च करें। सब कुछ बंद हो है ना। प्रभु कह रहा है, देखो जिन तुम्हारे खेतों में काम करने वालों ने मेहनत की, तुमने उनकी मजदूरी दबा रखी है। वो फरियाद कर रहे हैं और उनकी दुहाई सेनाओं के यहोवा, यहोवा सबायो नाम है उसका, सेनाओं का यहोवा। ये नाम मूसा ने लिया जब उसने उनको मार दिया कि तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है, यहोवा सबायो। हालेलुया। उसके लश्कर हैं, उसके कान में पहुंच गई है। हालेलुया। फिर कहता है, तुमने धरती पर मौजा माणिया अते शुका शाकी की थी। बहुत अच्छे वर्ड पंजाबी में लिखे हैं। सबब दिखाया, बहुत जिसे फुकरागिरी कहेंगे वो दिखाई है। तुसी कोई जान दे दिल ली अपने हृदय नूं पालिया है। बहुत खास वर्ड याकूब लिख रहा है। याकूब कह रहा है, तुमने अपने आप को बिल्कुल तैयार किया। ये ऐसे ही है जैसे वध करने के लिए किसी मेमने को खिला पिला के हट्टा कट्टा किया जाए। क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम नहीं है, ये घमंड में, अहंकार में, दौलत के नशे में एक अलग तरह का जीवन जी रहे हैं। दीन दुखियों की, गरीबों की, विधवा की, अनाथों की किसी की सुधि नहीं ली। काइंडनेस, मर्सी, चैरिटी इनके जीवन में नहीं। तो अब क्या आ रहा है? अब पृथ्वी के ऊपर सजा आ रही है, यहोवा परमेश्वर कह रहा है। तो प्रभु कह रहा है, रिपेंट करो। आप पढ़ोगे मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, मेरे पास समय नहीं खोलने का, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 13, 14, 23 और 25 तक, 26 से 28 तक, इन वचनों में परमेश्वर सजा दे रहा है। ये फरीसियों, हाय तुम्हारे ऊपर सदूकियों। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हारी हिपोक्रेसी और तुम्हारी इनिक्विटी, तुम बाहर से धोके कब्रों को शुद्ध किया। उसका एक बड़ा गहरा मीनिंग है बाहर से कब्र को पेंट करने का, वो फिर कभी बताऊंगा आपको। उसके अंदर गंदगी है और तुम्हारी हिपोक्रेसी और तुम्हारी इनिक्विटी कब्र के अंदर गली सड़ी हड्डियों की मानिंद है। प्रभु कहता है कि इन लोगों को प्रभु कहता है कि तुम धनिये का, जीरे का दशमांश देते हो, लेकिन करुणा, दया, भलाई, इसके जैसी बड़ी बड़ी चीजों को तुमने पीछे फेंक दिया है, इसकी ओर ध्यान नहीं किया। ये वचन पढ़िएगा, मत्ती 23 का 13, 14, मत्ती 23 का 23, 24 और 25, मत्ती 23 का 27 और 28। यीशु मसीह उनसे कह रहा है, इंटरनली, अंदर से अपने आप को बदलो। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा हृदय अंदर से बदले, तुम अंदर से तब्दील हो, तुम अंदर से परमेश्वर के आगे विलाप करो और परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करे। मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन आपको बताता हूं, मेरे साथ निकालिए पहला राजा की पुस्तक जल्दी से निकालिए, उसका 8 अध्याय, 1 किंग्स चैप्टर नंबर 8 का आपको 28 वचन पढ़वाना चाहता हूं। पहला राजा 1 का 28। सुनिए प्रभु क्या कहता है। पहला राजा, मैंने सेकंड किंग, पहला राजा उसका 28। हालेलुया। 22, सॉरी मैंने 28 नहीं निकालना, हमने पहले ये वचन पढ़ना। पहला राजा का 8, 1 किंग्स चैप्टर नंबर 8, पहले 8 पढ़ना हमने। पहला राजा 8 जल्दी से निकाल लीजिए, 1 किंग्स 8, और उसका मैं पढ़ता हूं आपके सामने 2 वचन। पहला राजा उसका 8 अध्याय, उसके 2 वचन मैं आपके आगे पढ़ने लगा हूं। 28 वचन पहले पढ़ने लगा हूं। पहला राजा 8 अध्याय उसका 28 वचन। क्या कहता है प्रभु यहां पे? हे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपने दास की विनती की ओर ध्यान दे, उसकी दुहाई और बेनती को सुन जो तेरा दास तेरे आगे आज प्रार्थना करता है। तेरी आंखें दिन रात इस भवन की तरफ खुली रहें, जिसके कारण तेरा नाम इस जगह में बना रहे। अपने दास की विनती को जो इस स्थान की तरफ करे सुन। में क्या हो रहा है?
इस समय सुलेमान परमेश्वर के लिए एक आलीशान है कर रहा है, कई $100 बिलियन की हैकल है ये। जब डेडिकेट कर रहा है तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर, आंखें लगी रहे, इस स्थान में से जो प्रार्थना उठे स्वर्ग की ओर, परमेश्वर तू को सुनना, अपने दासों की प्रार्थना इस स्थान से उठे। मैंने आपको बताया कि यहोवा परमेश्वर मेरी प्रजा, किसकी प्रजा? मेरी प्रजा। प्रजा है, संसार यहोवा की प्रजा नहीं है। परमेश्वर का ये नियम संसार के लोगों पे लागू नहीं है, हमारे ऊपर है, कलीसिया के ऊपर। यहोवा के पहली वाचा के लोग यहूदियों के ऊपर लागू है, हमारे ऊपर ये वचन लागू। हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके नाम से, मैंने आपको उसका नाम बताया, हाइया आशेर हाइया। फिर मैंने आपको बताया वो सबसे पहले अपने आप को करे, आना और टफीनू प्रोसेस से गुजरे, खाली करे अपने आप को, और जो अन्याय चीजों से लोभ किया उनको जोड़ रखा है, और जो लस्ट की है शरीर की अभिलाषा की उसे छोड़े, और जो दिखावा किया है, और जो घमंड किया है, और जो यीशु मसीह कहता है ना फरीसियों के ऊपर, तुम विधवाओं का घर हड़प लेते हो, तुम धनिये का जीरे का दशमांश देते हो, और जो गहरी बातें उनको तुच्छ जानते हो, तुम्हारे ऊपर हाय हे पखंडियों, क्योंकि तुम चौंकों में खड़े होकर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो कि लोग जाने कि तुम बड़े धर्मी हो। यीशु मसीह कहता दिखावा, यीशु मसीह कहता घमंड, यीशु मसीह कहता बनावटीपन, यीशु मसीह कहता धन का लालच, यीशु मसीह कहता शरीरी के अभिलाषा की चीजें। उन्होंने मन्ना मांगा और क्या लिखा है? किब्रोत हा अताबा बन गए, उनकी लस्ट की कब्रें बन गई वहां पे। यीशु मसीह कहता है ये सब चीजें तुम छोड़ो और मेरी तरफ पलटो, प्रभु यीशु मसीह कहता, हालेलुया। और कैसे? मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती, जब वो प्रार्थना करे, कहां से प्रार्थना करे? प्रभु कहता है ये है मंदिर, हम हैं उसका मंदिर, हालेलुया। वचन में लिखा है कि इस भवन में जो प्रार्थना की जाए, प्रभु यहोवा तो सुनना। तो कौन है उसका भवन? कौन है भाइयों और बहनों? चर्चें तो बंद पड़ी है ना, क्या नहीं? वो बिल्डिंग नहीं है उसका भवन, आप हो उसका भवन। ये मैसेज प्रभु आपको दे रहा है, क्योंकि मैं अक्सर देखता था पादरी साहब डालते थे शनिवार को, जी कल इतवार है, चर्च में जरूर आना। अब आपको पता लगा असली चर्च कौन है? असली चर्च हम हैं, जिंदा पत्थर। यीशु मसीह खुद कोने के सिरे का पत्थर है, आए जा रहे हैं, हम लिविंग लिम्स हैं। चर्च ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कलीसिया ऑर्गेनिज्म है। कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का जीवन धड़कता है, यीशु मसीह का खून बहता है कलीसिया के अंदर, वो सिर है और हम उसकी देह हैं, हालेलुया। प्रभु कहता है इधर, यहां से जो प्रार्थना उठे, कैसे? हृदय से, जो दीन है, जो हलीम है, जो यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है, वो जो प्रार्थना उठेगी दीनता की और विलाप के साथ, जिसने अपने इस जिस्म को, मैंने बोला आपको, किब्रोत हा ताबा नहीं बनाया, लस्ट की कब्र नहीं बनाना, इसको यहोवा के चरणों में चढ़ाना है, हालेलुया, ताकि इसके अंदर यहोवा की हजूरी वास करे, हालेलुया। मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ें जल्दी से, फिर हम प्रार्थना करेंगे। अपनी बाइबल खोलें, नीति वचन निकालिए, प्रोवर्ब्स जिसे हम बोलते हैं, नीति वचन निकालिए जल्दी से, प्रोवर्ब, एंड टर्न टू चैप्टर नंबर 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 28। Let's read verse number 9. Proverbs 28, verse number 9. Let me read it for you. Proverbs 12, Proverbs 28, verse number 9. यहां पे लिखा है, जो व्यवस्था सुनने से कान फेरता है, he who turns his ear away from the Torah, the living God, his prayer is an abomination unto God. He who turns his ears away, his heart away, and his life away from the living word of the living God. जो तोरा को तुच्छ जानता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर की नजर में घिनौनी है। इधर तोरा स्थापित होना चाहिए, इधर जीवित वचन यहोवा लिखे आपके अंदर, और ये जगह शुद्ध होनी चाहिए। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? क्रूस पे जाने से पहले यीशु मसीह ने परमेश्वर की हैकल को साफ किया। वो गया और वहाँ पे बड़ी डीप बातें हैं, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। उसने क्या किया वहाँ पे? दो चीज़ों, एक टेबल
को और एक कुर्सी को। ग्रीक वर्ड है, कुर्सी के लिए वर्ड है कैथीड्रा और टेबल के लिए वर्ड है ट्रपीजो। अब ध्यान से सुनिएगा, वो जो हैकल के साथ जगह है वहां पे हो क्या रहा था। इस्राएली लोग यहोवा की उपस्थिति में जाते हैं साल में 7 बार पर्व मनाने के लिए, और यरूशलेम पहाड़ पे बना नगर है, दूर दराज से लोग आते हैं। वो मेमना लेके, बकरा छतरा लेके, जानवर लेके, धन लेके, पैसा लेके, ऑलिव ऑयल लेके, या फिग्स लेके, ड्राई फ्रूट लेके और कपड़ा लेके, जो भी प्रभु को देना चाहते हैं वो लेकर आते हैं। और आपको मालूम वो जानवरों को वहां चढ़ाते हैं। तो जो कैफा और आना थे, इन्होंने वहां पे एक बिजनेस खोला हुआ था कि जानवरों को कुर्बानी करने के, चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं, आप आराम से आओ, आपको इधर ही मिल जाएंगे। और दुगने तिगने भाव पे बेचा जाता था। दे यूज्ड टू रियली मिंट मनी। एंड ऑल्सो इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड द रोमन कॉइन्स वर नॉट ऑफर्ड अनटू गॉड। रोमी पैसा नहीं चढ़ाया जाता था, तो शेकल चढ़ते थे चांदी और सोने के, और वो शेकल ये एक्सचेंज करते थे। फॉरेक्स थी वहां पे, एक वेस्टर्न यूनियन खोली हुई थी अन्ना और कैफा ने। वहां पे रोमन करेंसी लेके हैकल में चढ़ने वाली करेंसी दी जाती थी, और बहुत ज्यादा कट लिया जाता था, कमीशन ली जाती थी उसके ऊपर। आपको मालूम कैथीड्रा, वहां पे कैथीड्रा सिनेगॉग के अंदर एक कुर्सी होती है, उसे सीट ऑफ मोजेस कहा जाता है। कुर्सी होती है, उसके अंदर रब्बी बैठ के कलाम सिखाता है। वहां पे वही शब्द यूज किया गया, कैथीड्रा, कुर्सी। वो कुर्सी जिस यहोवा का कलाम सुनाया जाता है। वो कुर्सी किस लिए बरती इस्तेमाल की जा रही है? बिजनेस के लिए। और ट्रपीजो एक मेज है। आपको मालूम ट्रपीजो का मतलब क्या होता है ग्रीक में? मिनी बैंक। वहां पे बैंकिंग चल रही है, फॉरेक्स चल रहा है, करेंसी चेंज की जा रही है और मोटा प्रॉफिट बनाया जा रहा है। जैसे आज भी तेल भी बेच रहे हैं लोग, पानी भी बेच रहे हैं, कपड़ा भी बेच रहे हैं, मग पे फोटो लगा के बेच रहे हैं, चद्दरें बेडशीटें बेच रहे हैं, टाइल्स बेच रहे हैं, जो चीज हाथ में आती है बेच रहे हैं। मिट्टी भी बिक रही है कई जगह। अफ्रीका में तो एक बंदे ने लाल रंग के पानी को ब्लड ऑफ 4-4, 5-5 हजार $US में, और कितनी हैवी पट्टी लोगों की आंख पे बंधी है जो यहोवा के कलाम को नहीं जानते लोग। यीशु मसीह ने देखा कैथीड्रा जहां से कलाम जाता है, सीट ऑफ मोसेस, और ट्रपीजो एक बैंक बना हुआ है, और वो आध्यात्मिक कुर्सी जो है। तो यीशु मसीह गया, उसने जानवरों को निकाल दिया और सब कुछ उलट पुलट कर दिया। क्या आप सोचते हैं अब यीशु मसीह ऐसा नहीं करेगा? अपनी आमद से पहले यही कर रहा है वो। दुल्हन की 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, झुर्री, दाग और धब्बे, वो दूर करेगा। दुल्हन को अपने आप को हलीम करना है। हालेलुया। एक वचन पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं। 30 नीति वचन, 30th प्रोवर्ब, 30 नीति वचन, कहावतां दी पुस्तक ਉਹਦਾ 30 ਅਧਿਆਏ ਕੱਢੋ, ਉਹਦਾ 4ਥਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਹਾਵਤਾਂ 30 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 4ਥਾ ਵਚਨ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਚੜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ उतरिया, कौन में गया और कौन स्वर्ग से नीचे आया। किसकी बात हो रही है भाई और बहनों? एक ही है, जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। फिर लिखा है किसने पौन को, हवा को, कूटों की हवा को, वचन में लिखा वो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है ऐसे। कलाम में लिखा है नीति इक्लीसियास्टस में, कोहेलत उसे बोला जाता है हिब्रू में, उसमें एक डिप्रेस्ड बंदा, मेलनकाली सोलोमन क्या कहता है कि हवा, मुट्ठी में हवा पकड़ने वाली बात है, एवरीथिंग इज वैनिटी, एवरीथिंग इज वैनिटी, ये बोलता है। तो कौन पवन को मुट्ठी में पकड़ सकता है? उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। किसने पानियों को अपनी चादर में, ऐसे अपनी चादर के अंदर समुद्रों के पानी लपेट लिए? कौन है वो? उसका नाम है जीसस ऑफ नाज़रेथ। फिर सवाल करता है ये नीति वचन लिखने वाला, किसने पृथ्वी के सारे बन्ने ठहराए, बाउंड्रीज बनाई हैं पूरी ब्रह्मांड की, उसका नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम क्या है? जो जीसस के नाम में बपतिस्मा देते हैं ना, उनको ये वचन बताइएगा। होलीनेस पेंटिकॉस्टल, वननेस पेंटिकॉस्टल, बताइए। यहां पूछ रहा है व्हाट इज हिज नेम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। उसका नाम है यहुआ, उसका नाम है हाइया आशेर हाइया। बोलिए मेरे साथ, हाइया आशेर
Haya. Say after me. Haya, Asher, Haya. When somebody asks God of the universe, what is your name? God who dwells in unapproachable light. God who's absolutely glorious. He spoke through the medium of fire and he said, Haya, Asher, Haya. That's my name. Say the name of the Lord. Haya, Asher, Haya. Haya, Asher, Haya. प्रभु ने कहा, मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है, ये है नाम उसका, हाइया अशर हाइया। ये आपके इधर इन्वोक किया गया है, आपके इधर लिखा गया है, और लिखा है वो अपने बुरे मार्गों को छोड़े, और फिर लिखा अपने आप को दीन करे। मैंने आपको बताया दीन कैसे करना है। फिर लिखा है मेरे चेहरे को ढूंढे। कल सुबह आपको बताऊंगा उसको चेहरे को कैसे ढूंढना है। तब प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा और उनकी पृथ्वी को हील कर दूंगा। परमेश्वर हील करेगा। We'll pray that God will heal the universe. God will heal the nations. God will command this vicious virus to cease in its track and it will vanquish. We'll pray, we'll repent, we'll humble ourselves before Him. Hallelujah. We'll do what He tells us to do and we'll keep His Torah in our hearts and He will relent in His anger. He'll remember the covenant He made with my father David. He made with my father Abraham, Isaac and Jacob. He'll remember the covenant and He'll have mercy upon us. Hallelujah. Tomorrow at 10:30 I am going to talk about the faces of God. And look unto the faces of God. We'll talk about the faces of God. परमेश्वर के चेहरों के ऊपर सुबह मनन करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें। Hallelujah. Father, I pray that you protect and cover everyone that hearken unto your voice. Father, you teach them how to humble themselves. Father, the garbage that they are carrying, the baggages that they might be having in their life, how, Father, how they would allow your Holy Spirit to really sweep inside. Holy Spirit, carry the broom inside and cleanse everything. Lord, you are, Lord God, the goldsmith's fire, and you are full of soap. May you cleanse them outside and may you cleanse them inwardly, I pray. May they learn what true humility is. May they learn what turning away, turning unto God is. Hallelujah. And may they become the seeker of your face, Lord God. I bless these people. I pray for their loved ones, their families, their homes. We pray for India, Father. We pray for different nations on the earth, particularly the United States of America and other nations, Father, where this vicious virus is really creating havoc, Father. I pray that your hand of love and mercy and kindness will come upon the churches. A new revival, your spirit will birth in the churches. Hallelujah. और प्रभु अपने वचन में कहता है, जो वचन हम पढ़ रहे थे याकूब की पत्री में, वहाँ पे लिखा है जो किसान है परमेश्वर, वो पहली और आखिरी वर्षा की प्रतीक्षा करता है और वो फसल काटनी चाहता है। फसल आ रही है आखिरी परमेश्वर के राज्य में, महान कटनी, उसमें आपका योगदान होगा, हमारा योगदान होगा, इससे पहले कि प्रभु आए। हालेलुया। अपने जीवन समर्पित करें, अपने परिवार घरानों को। प्रभु, इनके परिवारों पे, घरानों पे मैं तेरा लहू छिड़क देता हूँ। हाइया अशर हाइया यहूशा मशियाक, मे यू कवर देम एंड मे यू ब्लेस देम इन योर ब्लड। यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप में से किसी के दिल से प्रभु बात करे कि आप कोई ऑफरिंग देना चाहें तो बता दीजिएगा हमें। हालेलुया। ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपको दिल को छुए और आपसे कहे कि आपने कोई बीज बोना है, बीज बोना, मैं सोचता लोग अक गए इससे। अगर आप कोई प्रभु को भेंट देना चाहते हैं, आप अपनी भेंट दे दीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे मैसेज करके। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। कल 10:30 बजे हम बात करेंगे द फेसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के चेहरों के ऊपर वचन सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।